So today is day 9 and we'll be solving this minimum window substring. So the problem is simple. You are given two strings s and t of length m and n, and you have to return a minimum window substring of s such that every character in t is included in the window. So I'll explain you with an example. So here you have a string abc given. So if you see all of these characters abc, like including the duplicates, a, B, C, it is in this substring. I'll just zoom this once. So it is present in this substring A, B, C. It is also present in this substring A, B, C, and out of these two substrings, the smaller one is this BNC bank one. So you don't have to just print out the length, you actually also have to print out the whole substring. And similarly, यहाँ पे if you see SATA, the entire string S is the minimum window. And similarly in this problem you see a is there, but as it said in the question, you have to include the duplicates also. So a should be, or like there should be two a's in s. Okay, could you find an algorithm that runs in big of m plus n time? Yeah, so there are two ways to solve this. So first of all, our standard thinking, like if there's any question which asks you for minimum thing sort of thing, so you can go with dynamic programming or you can go with binary search. So if you think about this problem closely, you can easily apply a binary search on this question. So what you can do is you can just assume that the answer is suppose x, and check for all x substrings, and then you will check for all the x substrings if it, like you can make a map kind of thing, like map of characters comma its frequency, and then you can compare that with this abc, and if it's present for that particular substring ka length, then you reduce your length and again try the same thing. So that would be binary search big of n log n, I think m log n. And then the second approach is two pointer approach, that too in a greedy way. So that I'll be explaining because that's what I've implemented. So suppose you have, let's just say a b, okay, let's not make it that simple, a m n b c, then again you have a k, then you have an a, okay, and the target string that is given to you is abc. I've written this in form of an array. So initially you will be using a two pointer approach. So till the time you are not able to satisfy your first string, that is which has abc, you will keep increasing your right pointer. So eventually your right pointer would be mnbc, it would be somewhere over here, and now you have this substring, right, a b and c. Now what you'll do is, अभी तुमने देखा कि abc वाला substring में मिल गया, ठीक है. Now ये एक आंसर है, you will just store this l का value एंड तुम लेन को भी किसी चीज़ से इनिशियलाइज कर सकते हो. सो आर एल वुड बी 0 बिकॉज यू फाउंड एन आंसर, राइट, एंड आर लेंथ वुड बी एल ई एन वुड बी 1 2 3 4 5 5. नाउ यू विल keep getting your L वापस till the time you are able to till the time you don't have the, like you're not able to satisfy, till the time it is matching you will keep reducing, like you'll keep increasing your L. So यहाँ पे हम L को increment करेंगे क्योंकि हमें, now think about it like this way, you have this a b c, तुम्हें एक एरिया मिल गया जहाँ पे a b c all of them are covered in your target substring, ठीक है. Now what you have to do is, तुम्हें अभी छोटा करना आंसर, तुम्हारे पास सब था, तुमने उसका स्नैपशॉट काइंड ऑफ ले लिया एंड तुमने सेव कर दिया. नाउ यू आर सेइंग कि जब तक ए बी सी है ना मेरे पास, तब तक एल तो छोटा होता जा. तो अभी क्या होगा, एल आएगा एंड एल वुड स्टॉप व्हेन इट रीचेज एम, ठीक है. या लाइक दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे यू डोंट हैव ए बी सी एनी मोर, देन यू विल अगेन स्टार्ट इंक्रीमेंटिंग योर आर. सी कितना ग्रीडी सोच रहे हैं कि हमारे पास जब तक ए बी सी है हम उसे रोक रहे हैं, फिर हम कोशिश कर रहे हैं अपना स्ट्रिंग छोटा करने का. नाउ यू विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग योर आर टिल द टाइम यू डोंट हैव ए बी सी. तो तुम बी सी, तो मेरे पास बी सी तो ऑलरेडी है, तो यू विल रीच दिस पॉइंट आर. सो सेकेंड इज दिस एल कॉमा आर, ये भी एक स्ट्रिंग है जहाँ तुम्हारे पास ए बी सी है, बट यू वोंट डू एनीथिंग विद दिस क्योंकि इसका जो लेंथ है दैट इज़ ग्रेटर दैन दिस 5. नाउ सेकेंड स्टेप आएगा. सेकेंड स्टेप इज़ एल को छोटा करते जाओ जब तक तुम्हारे पास ए बी सी है, क्योंकि हमें ना वो हार्ड बाउंड्री चाहिए कि मेरे पास यहीं पे ए बी सी होना चाहिए. हम लाइक हमें एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स नहीं चाहिए अपने आजू बाजू. तो यहाँ पे इफ़ यू सी, तो अभी मैं अपना एल को एक्सटेंड करते जाऊँगा, लाइक मैं एल को छोटा करते जाऊँगा. सो एल वुड रीच हियर. डू आई स्टिल हैव ए बी सी? येस आई स्टिल हैव ए बी सी. फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, डू आई स्टिल हैव ए बी सी? येस आई स्टिल हैव ए बी सी. और मैं हर ऐसे पॉइंट पे ना चेक करता रहूँगा
what is my r minus l plus 1, what is my r minus l plus 1, this I would compare with my length. एंड क्योंकि दिस इज़ माई लेंथ करेंटली राइट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आर माइनस एल प्लस 1 वुड बी 4 और वो मेरे लेंथ से छोटा है, सो आई वुड अपडेट माई लेंथ टू, मेरा लेंथ अभी 4 हो जाएगा एंड मेरा एल वाला चीज़ वुड बी 0 1 2 3. ठीक है, नाउ आई हैव दिस. अभी मैं इसको अभी मेरे पास चीज़ें आ गई राइट, आई हैव ए बी सी. अभी सेम चीज़ मैं वापस स्टार्ट करूँगा इसे छोटा करने का. तो अभी मैं छोटा करते करते तो इवेंचुअली यू डोंट हैव एनी मोर ए बी सी एंड द लूप वुड सिंपली एंड. सो नाउ इफ़ यू सी मैंने क्या स्टोर किया था, एल इज इक्वल्स टू 3 एंड लेन इज इक्वल्स टू 4. इन दी एंड तो मैं सपोज दिस वॉज द एस स्ट्रिंग एंड दिस वॉज द टी स्ट्रिंग, you simply have to return s dot substr starting with l and a length of len. That is your final answer. ठीक है, तो सिंपल है. तुम फर्स्ट ट्राई करोगे अपना 2 पॉइंटर लगा के ए बी सी, अगर तुम्हें मिल गया तो दैट्स गुड. अभी जब ए बी सी मिल गया तो ट्राई रिमूविंग ऑल दी फालतू के कैरेक्टर्स जो तुमने इंक्लूड कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, मेरा एल एम पे था और मेरा आर ए पे था, तो मेरे पास ये तो फालतू की चीज़ें थी. तो मैं अपना एल छोटा करते जाऊँगा टिल द टाइम दिस इज़ माई हार्ड बाउंड्री. वंस आई फाउंड माई हार्ड बाउंड्री कि मैं इससे छोटा करूँगा तो चीज़ें फट जाएगी, देन आई वुड फट जाएगी एज इन इट वुडंट मैच टी के साथ, देन आई वुड वापस मैं सर्च करना स्टार्ट कर दूँगा. सो इसका कोडिंग भी सिंपल है एंड वो चेक करने के लिए कि इफ़ इट्स मैचिंग और नॉट, इट्स अ सिंपल थिंग. तुम टी डेटा को बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी मैप में तुमने रखा है, बेसिकली ऐसा कुछ, मतलब हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी रखा है. एंड ऐसा कोई भी केस आ गया जहाँ पे टी पे वो जो टी स्ट्रिंग है उसमें वो कैरेक्टर ज़्यादा बार आ रहा है एज़ कम्पेयर टू उस टाइम का जो एस का डेटा तुम्हारे पास सेव्ड है, यू हैव टू रिटर्न अ फॉल्स. नाउ सिमिलरली वही वाइल आर इज़ लेस देन एम, तुम उस राइट पॉइंटर को अपने आंसर में ऐड किया. अभी बाय द टाइम तुम्हारा एल इज़ लेस देन इक्वल टू आर और वो एल टू आर वाला चीज़ मैच हो रहा है, यू कीप इंक्रीजिंग योर एल प्लस प्लस, और तुम वो जो एस डेटा में वो एल वाला कैरेक्टर जो तुमने ऐड किया तुम उसको डिक्रीमेंट करते जाओगे. एंड जब जब तुम्हारा जो आंसर है दैट इज़ तुम उसे लेन के साथ कंपेयर करोगे विच इज़ इवेंचुअली अ फाइनल आंसर. अगर तुम्हें छोटा आंसर मिल रहा है तो यू विल मिनिमाइज योर लेंथ एंड यू विल चेंज दिस एल सब. व्हाट इज़ दिस एल सब, जो हम बेसिकली इन दी एंड रिटर्न करेंगे. एंड आर प्लस प्लस तो हमेशा ही होगा बेसिकली. सो कोई भी पॉइंट में चेक इफ यहाँ पे है, अगर है तो एल छोटा करते रहो, नहीं है तो आर को वापस बढ़ाओ, आर को बढ़ाते रहो. और अगर इन दी एंड वापस हमें मिल गया तो एल को वापस छोटा कर. तो एल को कब छोटा करना है, जब तुम्हारे पास मैच है और तुम्हारे उस मैच का हार्ड बाउंड्री ढूंढना है तुमको, तब तुम एल को आगे करोगे. अगर तुम्हें मैचिंग ही नहीं मिल रहा है तो तुम नए नए कैरेक्टर्स अपने लिस्ट में ऐड करते जाओगे. जैसे ही तुम्हारे लिस्ट में टी का तुम्हारा रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया, यू विल एल से छोटा करना स्टार्ट करोगे. सो एल इसका यहाँ पे एल का मेन रोल है, वो आंसर छोटा करने में यूज़ होता है. आर का क्या काम है, वो आंसर ढूंढने में यूज़ होता है. एक बार मैच हो गया, आर ने आंसर ढूंढ लिया, एल वुड स्टार्ट रिड्यूसिंग, एल इंक्रीमेंट होने लग जाएगा सो दैट योर विंडो का साइज डिक्रीजेज एंड इवेंचुअली यू विल हैव द आंसर. एंड अगर लास्ट में लेंथ इज इक्वल्स टू इंट मैक्स, दैट मीन्स तुम्हें कहीं आंसर ही नहीं मिला है, सो यू विल जस्ट सिंपली रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग एज सेड. सो दैट्स इट. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. बाय बाय.